Hello everyone, good morning and Jai Hind to all of you. So previously we have completed question number 1 of exercise number 3.6. Now let's move further to very most important part of our chapter. Okay, word problems of exercise number 3.6. So these three sums and example number 19 which are the most important sum, right? तीनों में से एक सम तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आता ही, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. Number 1. Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours. So for downstream, distance is 20 kilometers in 2 hours. So time is 2 hours, right? So downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Upstream 4 kilometers in 2 hours. Okay. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. So as I said, what we need to suppose? So speed of rowing in still water. So let us suppose the speed of Ritu in still water equals to x kilometer per hour, and second, the speed of the current. The speed of current is y kilometer per hour. Okay. Now we have distance, time, and speed. So we know that speed equals to distance upon time. Okay. So formula I hope साइंस में भी आ चुका है, सो आपको पता होगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. नाउ फॉर दिस डाउनस्ट्रीम. So downstream with distance is 20 and time is 2 hours and speed is x, right? And for upstream distance is 4 kilometers, time is 2 hours and speed जो है downstream and upstream. Yes, sorry. Downstream that means what? Current and Ritu. ठीक है, यानी रितु जिस डायरेक्शन में जा रही है, अगर उसी डायरेक्शन में करंट होगा, दैट मींस करंट की जो स्पीड है वो रितु की स्पीड को ऑब्वियसली उसको धक्का देगी. ठीक है, उन दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, सपोज आप साइकिल लेके कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, सो बहुत हैवीली कोई विंड जैसे कि कोई हैवी पावर की वजह से आप लोग जो है, ठीक है, आपको धक्का सो क्या हो जाएगा, आपकी जो स्पीड है अगर उसी डायरेक्शन में, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में आपको धक्का लगेगा, सो आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट? बट अगर जो विंड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, जो हवा चल रही है, ठीक है, वो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो आपकी जो स्पीड है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ विंड, राइट? सो हियर फॉर डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम में रितु जो है उसको धक्का लगेगा करंट का, दैट्स व्हाई दोनों की स्पीड जो है वो प्लस हो जाएगी. एंड यहां पे क्या होगा, उसका ऑपोज होगा. वो रितु तो अपनी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, बट करंट की जो स्पीड है उसकी वजह से उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी. दैट मींस उसकी जो स्पीड है उसमें से करंट की स्पीड को माइनस करना पड़ेगा, राइट? So for downstream speed will be x plus y and for upstream speed will be x minus y. Why x plus y and x minus y?
नॉट y माइनस एक्स। वाई? बिकॉज करंट की जो स्पीड है वो ऑब्वियसली विच इज लेस देन v2। अगर करंट की स्पीड v2 की स्पीड से ज्यादा होगी सो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के बावजूद भी वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकती, राइट? सो हियर आवर स्पीड इज x माइनस y, नॉट y माइनस x। सो यहां पे स्पीड हो जाएगी x प्लस y एंड हियर x minus y. Now, according to this formula, according to information, first equation will be speed. Speed is for downstream x plus y equals to distance for downstream is 20 kilometers upon time. Time is 2 hours. So 20 by 2, therefore x plus y equals to 10. Equation number 1. Now same for the upstream. So speed is x minus y. So again according to information, x minus y equals to distance is 4, time is 2. So 4 by 2. 4 by 2 is 2. So x minus y equals to 2. Equation number 2. Now you can solve these two linear equations by any suitable method, and after that you will get the values of x and y. Okay? Now solve this. Okay? Now go for the second one. Two women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men finish in 3 days. Right? Now find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. ठीक है? That means कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ वुमन है जो मिलके एक एम्ब्रॉयडरी वर्क कंप्लीट करते हैं। ठीक है? तो सेपरेटली वो कितना काम कर सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। सो लेट अस सपोज वुमन के लिए, सपोज वन वुमन अलोन, टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन इज x। सपोज टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन इक्वल्स टू x डेज, यानी x दिन में वो अपना जो एक एम्ब्रॉयडरी का काम है वो कंप्लीट कर सकती है, राइट? सेकंड, टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन, दैट इज y डेज। नाउ 2 men and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, यानी 4 दिन में 2 women and 5 men, ठीक है, वो कंबाइन होकर एक एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है वो कंप्लीट करते हैं। अभी 4 दिन में एक काम कंप्लीट करते हैं वो सब मिलके। नाउ आवर सपोजिशन इज एक वुमन जो है वो x डेज में एक काम कंप्लीट करती है, राइट? सो फॉर वुमन कंप्लीट वन वर्क इन x डेज, अगर इसको हम सपोज करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए तो वी कैन राइट एज डायरेक्टली, अगर आपको स्टेप लिखना है यहाँ पे, सो वुमन जो है वो एक दिन में कितना काम करती है, सॉरी x डेज में वो एक काम कंप्लीट करती है जो हमारा सपोजिशन है, राइट? वर्क डन वन वुमन अलोन, एक वुमन जो होती है वो x डेज में अपना एक काम कंप्लीट करती है, राइट? सो x डेज में अगर वो
पूरा एक काम कंप्लीट करती है, सो 4 डेज में कितना कंप्लीट करेगी? 4 1 जा 4 अपॉन x। तो एक वुमन जो है वो 4 अपॉन x वर्क कंप्लीट करेगी, ठीक है। नाउ फॉर मैन, मैन जो है वो y डेज में, सो y डेज में 1 वर्क कंप्लीट करेंगे, सो वो भी 4 डेज काम कर रहे हैं, सो 4 डेज में कितना? सो इट विल बी 4 1 जा 4 अपॉन y, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन 2 men and 5 men, sorry 2 women and 5 men, so according to information 2 women, एक वुमन जो है वो 4 by x काम करती है एक दिन में, so 2 women जो है वो 4 by x into 4 by plus 4 by x, that is twice of 4 by x, यानी 8 by x। so woman जो है वो 8 by x काम करेगी दोनों मिलके, प्लस देयर आर टोटल 5 men, ओके। एक मैन जो है वो 4 by y काम कंप्लीट करेगा एक दिन में, सो ऐसे वहां पे 5 men जो है, ठीक है, वो 5 4 जा 20, सो 20 अपॉन y, यानी 5 men का 20 अपॉन y वर्क एंड वुमन जो है उसका 8 अपॉन x वर्क, दोनों ने मिलके यानी इन सब ने मिलके एक काम कंप्लीट किया, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन and reduced to last lecture 1 upon x equals to a and 1 upon y equals to b, right? So our equation is 8a plus 20b equals to 1, which is our first equation, okay. Similarly you can make second equation, right, and after that solve both of them, then you will get the time taken one woman alone, एक woman जो उसको कितना टाइम लगेगा एक काम कंप्लीट करने के लिए, and same for the man, ठीक है। so again it's very most important, right? so your today's homework is complete class work in notebook, okay. so last one, number 3, again which is most important, that we will see in next lecture, okay. and examples 17 and 18 also, okay. so this is your today's homework, so see you next lecture, till then goodbye, take care.